Assalamualaikum Intermediate Part 2. Welcome to the college once again. After such a long time, you know that we were also missing you so much. First of all, congratulations on the promotion in Intermediate Part 2. Though you couldn't attend the examination, but you know that that is an emergency situation and we should all understand. Right now, what is our priority is that is not firstly your education, but that is your health. So, in the context, in the background of COVID-19, you know that as it is happening all over the world, all countries are planning something. So we are doing just like the same. We have also planned that we should impart you education, but you know that your health is our first priority. So you all students must stay home and enjoy the lectures. Right now, all your faces are moving and flashing before my eyes. I can imagine all my students. And I'm really enjoying seeing you and discussing you after such a long time. I can hope and I can expect that you will also feel very much good, because you know that there is a large gap, there is a long gap, and you know that when we are disconnected of our educational system, we feel a type of hollowness. And if I am not wrong, according to my experience, after such a long time, when you will see your teachers once again before you, then you will start realizing that you are enjoying a house of knowledge, a treasure of knowledge. And you will also get a lot of gratification that your learning procedure is going to be started once again. So now you have tasted a long leisure time, and after enjoying a leisure time, hopefully you have also come to know that how much it is important to be active in your learning process. Once you drop that, gradually you start losing it. So I suppose to you that when we will start lectures, you will not only listen to the lectures with full attention, but you will also try to learn the things in examination viewpoint, and you should also attend the test honestly, so that your learning procedure should be started and should stay on compact grounds. Fine? You know that only listening is not enough. Learning and listening and learning, when these two factors are plus, then you can get some results. So let's come to the point. You know that these are recorded lectures, so we cannot have a lot of gossiping as we do in the classrooms, but even then we'll try to have a little. Fine. So you can see that there is a messy board before you, because we have to write down, you know, in advance. But just try to focus whatever I am saying. That is paper pattern, inter part 2. First of all, that is objective type. What it is? Objective type. इस दफा अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। और आपको पढ़ने से पहले पेपर का पैटर्न समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी भी करें। सिनोनिम्स बेटा क्या होते हैं? यू नो यू हैव आल्सो डन द क्वेश्चन इन पार्ट 1, मुतरादिफ अल्फाज, हमायनी अल्फाज, वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, तो सिनोनिम्स जो हैं, अब आप लोगों ने बुक 2 बाय करनी है मार्केट से, और बुक 2 आपकी दो हिस्सों पे कंप्राइज करेगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो एसेज वाला पार्ट है, और सेकंड पार्ट हीरोज वाला पार्ट है। ठीक है, तो एसेज वाले पार्ट में से जो सिनोनिम्स आपको आएंगे वो 3 स्टेटमेंट्स आएंगी। पार्ट 1 की मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत है। पार्ट 1 की तरह ही एक स्टेटमेंट होगी, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, और आपने उन 4 ऑप्शंस में से एक को राइट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा जो हमारा पार्ट है वो हीरोज का हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हीरोज में से भी 3 स्टेटमेंट्स होंगी, और उसमें से 4 ऑप्शन फॉर ईच होंगे जो आपने टच करना है। नेक्स्ट जो बच्चों हम किताब पढ़ेंगे वो है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स क्या है और
नॉवल कैसा है और मेन कैरेक्टर कौन है, स्टोरी क्या है, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी इस वक्त, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न। देन सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर चिप्स, there will be 4 statements, and you are and for each statement there will be 4 options, and you are to take the anyone among 4. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होगा आपका प्रपोजिशन का, ये इंशाल्लाह आपको समझाएंगे भी, लर्न भी करवाएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका होगा, मैंने यहाँ इडियम्स लिख दिया, ये इडियम्स का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह ग्रामेटिकली मैं आपको करवाऊंगी कॉमन एरर्स क्या होती हैं, और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस लिहाज से आप देखिए, जरा काउंट कीजिए मेरे साथ। 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, and 15 + 5 = 20। तो इस तरह ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है वो 20 मार्क्स का बेटे बन गया। सब्जेक्टिव पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, और ये 80 मार्क्स का जो पेपर है किस तरह से होगा, उसी तरह से बुक का जो पहला हिस्सा है वो एसेस पे मुश्तमिल है। इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने का क्या मतलब है कि टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 6/2 = 12। टोटल आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का। देन देयर कम्स हीरोज में से भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद मिस्टर चिप्स का क्वेश्चन आ जाता है। मिस्टर चिप्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 16 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, और ये 8/2 यानी 8 क्वेश्चंस आपने करने होंगे 12 में से, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 8/2 = 16। उसके बाद ऐसे, जो इंग्लिश बी में ऐसे आप करते हो, कंपोजिशनल जो टॉपिक होता है आपका, वो बेटा 15 मार्क्स का आपने करना होगा। आपको पता है कि पार्ट 1 में आप लोगों ने लेटर्स किए, स्टोरीज की, अब वो सारी चीजें निकल गई। अब उनकी जगह आपका ऐसे का क्वेश्चन आ गया। ऐसे कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे साथ साथ, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक उर्दू पैसेज आपको दिया जाता है, जिसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। You got my words? Okay, fine. So पेपर पैटर्न आपके सामने आ गया। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का। बुक्स जल्दी से बाय कर लीजिएगा, बल्कि अब तक आपको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग लेक्चर्स जैसे स्टार्ट करेंगे तो जो जो हमारा कोर्स कवर होता जाएगा, आप लोग वैसे ही टेस्ट पे आते जाओगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बच्चों के हाउ विल वी गो ऑन। देखो हमने पार्ट 2 में पढ़ा, ऑब्वियसली यू आर नॉट द न्यू स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल योर टीचर्स एंड वी नो यू वेरी वेल। यू नो दैट हाउ a teacher goes on in examination viewpoint. As concerned to me, if I talk about me, तो आपको पता है कि हम हमेशा इंग्लिश ए और इंग्लिश बी को साथ साथ लेके चलते हैं। इस दफा बेटे ये हमारे जो 2 मेजर क्वेश्चंस जो हमें करने पड़ेंगे, और जिनको हम किसी दिन भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है एसएस का, और एक क्वेश्चन है उर्दू पैसेज का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों 15 मार्क्स के बहुत ही जायंट टाइप क्वेश्चंस हैं, और एसेस चूंकि उसमें आपको लर्निंग करनी होती है, तो वो तो डे 1 से ही आपको फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको 40 तक टॉपिक्स जो हैं वो करवाए जाते हैं, ताकि आप रिस्क फ्री हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको बुक स्टार्ट करवाऊँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द एसेस, के एसेस क्या होते हैं और इसको हमने करना कैसे है, ताकि जब मैं प्रॉपर लेक्चर शुरू करूं तो हमारा लेक्चर जो है हर रोज 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा इंग्लिश ए के लिए होगा और दूसरा हिस्सा इंग्लिश
बी के लिए होगा, ताकि आपके दोनों पेपर्स एक ही टाइम पर तैयार होते जाएं, ठीक है। और नेवर एवर फॉरगेट माय एडवाइस पार्ट 2, आपने बेटे ऐसे साथ साथ लर्न करने हैं। वो स्टूडेंट्स जो ये समझेंगे कि हम लोग एकदम कर लेंगे या कुछ टॉपिक्स कर लेंगे, later they shouldn't blame the teacher that the teacher didn't guide you, because according to our experience we have to get that started on the very first day, because when your work is piled up you won't be able to do that, to handle that, is it? Got it? Okay, fine. चलो बस ध्यान से समझो ऐसे क्या होता है और किसे कहते हैं। लेट्स सी दैट। सबसे पहले ऐसे, ये उर्दू में आपको पता है इसके लिए मजमून लफ्ज़ यूज करते हैं। ऐसे में डिक्शनरी इसकी क्या डेफिनेशन देती है? डिक्शनरी सेज कि अ पीस ऑफ राइटिंग, अ पीस ऑफ राइटिंग, अ कंपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी आपको कोई एक मौजू दे दिया जाए जिसके ऊपर आप लोग मजमून लिखें। अब बेटे आपका जो इंटर लेवल पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कहा जाता है आई थिंक 300 to 350 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है। आउटलाइन आपसे रिक्वायर्ड नहीं की जाती है और आपने उसमें किस तरह के ऐसे आते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो आपको बताते हैं कि एसेस जो हैं, ऐसे की तो डेफिनेशन होगी ना, अ पीस ऑफ राइटिंग और कंपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब एसेस जो है बेटे 4 टाइप्स के होते हैं। एसेस हैव द वैरायटी ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले नैरेटिव एसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं और एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं। व्हाट इट इज? नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, argumentative and expository. Narrative, descriptive, argumentative and expository. Yes. अच्छा, narrative essays क्या होते हैं? ये वो essays होते हैं जिनमें आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, क्लाइमेक्स होता है, कोई प्लॉट का मतलब है दैट इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड। प्लॉट का मतलब है कि एक कॉम्पैक्ट स्टोरी, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्लाइमेक्स कब आना चाहिए, इसका एंड कब आना चाहिए, उस सारी फैब्रिकेशन को हम कहते हैं प्लॉट, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा, जैसे माय फर्स्ट डे एट कॉलेज या अ रोड एक्सीडेंट। देखो ना, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, दैट इज अ टाइप ऑफ योर मेमोरी। And you recollect that well, when on the first day when I was in the college, what happened, how did I face the atmosphere, environment, and how I met my teachers, how I went to canteen, and how I got my classes, how I was confused, how I was disturbed by my seniors। तो ये सारी चीज़ एक किस्म आप नरेट करते हैं, आप बयान करते हैं और उसमें आप एक पर्टिकुलर, जैसे माय फर्स्ट ईयर कॉलेज, आप सेटिंग बताएंगे कि वेल व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज आई सॉ अ बिल्डिंग एंड इन फ्रंट ऑफ माय आईज देयर वाज अ लॉन दैट वाज वेरी मच grassy, and on my left side there was a room but I didn't know either that was a staff room or an account office। मीन आप वो सारी फैब्रिकेशन करते हैं जो आपने देखी और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, नरेट करना, किसी चीज को बयान करना लाइक अ स्टोरी, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्राइब से है, यानी इसमें आपने कोई पास्ट हैपनिंग या जो कुछ सेटिंग्स के साथ आपने बयान नहीं करना होता। इसमें आप कोई प्लॉट नहीं बनाते, कोई सेटिंग नहीं बनाते हैं, कोई क्लाइमेक्स नहीं बनाते हैं, बल्कि आपने इट डिस्क्राइब्स द ट्रेट्स, ट्रेट्स कहते हैं खसूसियात को, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड फीलिंग्स। क्या मतलब है इसका? कि डिस्क्रिप्टिव एसेस वो एसेस होते हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों को, इवेंट्स को, फीलिंग्स को आप बयान करते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ स्टोरी टाइप, बल्कि आपका एक डिस्क्रिप्शन होता है। आप एग्जांपल सुने तो आपको समझ आ जाएगी, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। जैसे आपका टॉपिक आ गया डिस्क्रिप्टिव ऐसे का, तो आप उसमें बताओगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है इस तरह से है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी एजुकेशन ऐसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, ब्ला ब्ला। तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एसे। तीसरा जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आर्गुमेंटेटिव।
आर्गुमेंटेशन कहते हैं दलील के साथ बात करना, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव एसेज बेटे वो एसेज होते हैं जिसमें राइटर कन्विंस करता है रीडर को किसी टॉपिक पे, ठीक है। जैसे मैं कह देती हूँ, हम टॉपिक ले लेते हैं कि आज की सिनेरियो के मुताबिक ले लेते हैं, इस कोविड-19 killing? Is COVID-19 killing? ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं nowadays should we leave all प्रिकॉशनरी मेजर्स, आजकल क्या हमें तमाम हिफाजती इकदाम छोड़ देने चाहिए, ठीक है। इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको एक टॉपिक थ्रो कर दिया जाता है और आपने उसमें आर्गुमेंटेशन करनी होती है, यस या नो करना होता है। सपोज इफ यू से दैट नो वी शुडंट लीव द प्रिकॉशनरी मेजर्स, देन ऑब्वियसली यू विल गिव योर आर्गुमेंटेशंस why should not we leave, because obviously we can be affected with virus and we can be sick, that can act like a killer, and we can also infect others like that। तो आप उसके अपने इन्फो शेयर करते हैं, आप उसमें आर्गुमेंटेशन करते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि we shouldn't leave the precautionary measures because it is not harmful for ourselves but that is also for others। Fine, तो that is the second topic। sorry, argumentative जो है वो third type आपकी होगी। इसमें examples क्या होंगी, जैसे is competition really good? आपका बच्चों क्या ख्याल है कि मुकाबला जो है वो जिंदगी के लिए जरूरी है? Obviously इसमें कुछ लोगों का ख्याल होगा yes, there should be a competition and there should be always, और कुछ लोग कहेंगे no, there shouldn't be because that hurts you, that depresses you। We should do work but we should not have the competition because everybody has its individual capabilities and abilities। Fine, so we have to say no, competition is not necessary, ठीक है। तो ये तीसरी हमारी टाइप होगी। जो टाइप नंबर 4 है एक्सपोजिटरी एसेज हैं, ठीक है। एक्सपोजिटरी एसेज, ये एसेज कौन से होते हैं? these essays compare and explore, these essays compare and explore, discuss the problems, यानी कोई प्रॉब्लम को ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे हल होना चाहिए। मसलन आप कहते हो, मैं आपसे पूछती हूँ explain why you like a particular teacher। आप बताएंगे कि मैं क्यों पसंद करता हूँ पर्टिकुलर टीचर को, उसमें ये ट्रेड्स है कि आप आर्गुमेंटेशन नहीं कर रहे हो, आप दलील नहीं दे रहे हो, यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ दैट व्हाई डू यू लाइक अ स्पेसिफिक टीचर। या हम एक टॉपिक रख लेते हैं, इफ यू हैड बीन एन एनिमल, जस्ट सपोज अगर आप एक एनिमल होते देन व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू फील, और आप क्या करते कि कैसे होना चाहिए और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती कि आपको क्या क्या प्रिविलेजेस देने चाहिए एक्सेट्रा, ठीक है बेटे। इस जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने का सिर्फ एक मकसद है कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ऐसे क्या होता है, ऐसे की कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि इन तमाम टाइप से रेलिवेंट कोई ना कोई ऐसे आपका टॉपिक मौजूद होगा जिसको आपने करना है, ठीक है। तो करने से पहले इसको कमांड कर लीजिए, essay, a piece of writing or a composition on a particular subject. It has 4 types: narrative, descriptive, argumentative and expository। Narrative, it has characters, settings, timings and plot. Examples: my first day at college and a road accident। Descriptive, it describes traits and characteristics of people, objects, events and feelings। Examples: my best friend and my favorite place। Argumentative, in these essays the writer convinces the reader on some topic। Examples: is competition really good? Is fashion really important? Expository, these essays compare, explore and discuss the problems। Examples हैं explain why you specifically enjoy a particular teacher। And the next example is if you had been an animal, ठीक है। तो ये ऐसे आपके हो गए टॉपिक, जरा नोट कर लीजिए, माय बेस्ट फ्रेंड,
आपने मुझे बताना है कि माय बेस्ट फ्रेंड टॉपिक जो है इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। और आप लोगों ने कल जो मैं लेक्चर आपको दूंगी उसमें मैं आपको माय बेस्ट फ्रेंड पे थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगी, साथ ही मैं कुछ कोट्स भी आपको दूंगी। आप लोगों ने खुद भी नेट पे से लेने हैं, कुछ मैं आपको कोट्स दे दूंगी, मैं आपको क्राइटेरियाज बताऊंगी हमने ऐसे को लिखना कैसे है और आप ऐसे को कैसे लेके चल सकते हैं कंपोजिशनल फॉर्म में। ठीक है, तो कल का लेक्चर, मेरा लेक्चर माय बेस्ट फ्रेंड पे सुनने से पहले आपने उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर पढ़ना है। मैं अपने लेक्चर को बेटे सम अप करती हूँ। आज हमने सीखा पेपर पैटर्न कि हमारा पेपर जो है वो किस किस मार्क्स डिवीजन में होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए कितने मार्क्स होंगे, सब्जेक्टिव के लिए कितने मार्क्स होंगे और किस किस क्वेश्चन को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एसेस कर दिया। बेटे अपनी प्लीज बुक्स ले लीजिए, बुक 2 और मिस्टर चिप्स दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और की बुक आपको पता है आप कौन सी यूज़ करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, सर्च एंड कॉम्प्रिहेंसिव आप यूज़ करते हैं। की बुक तो आप अपने साथ रखिए ताकि साथ साथ आप अपना मटेरियल जो है वो लर्न कर सकें। लेक्चर में आपको देती जाऊंगी। बेटे अपना फीडबैक आपने ज़रूर बताना है। वैसे तो आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स में हैं, यू आर नॉट द न्यू वन, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद आवर स्टाइल्स, लेकिन इसके बावजूद चूंकि क्लास नहीं है तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो, ना समझ आए, मेरी स्पीड तेज हो जाए या कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ना हो, तो आप हमें फीडबैक से आगाह करें और हमें टीचर बनने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच एंड फील so much good to see you after a long time. Allah.